EVM debate, where more than a week after the Lok Sabha election results were declared, now Tesla CEO Elon Musk has raised concerns over the EVMs. Now, Musk, in a post on X, suggested that eliminating electronic voting machines due to the risk of hacking humans by humans or AI. Now, ex-Union Minister Rajiv Chandrasekhar has responded to Musk's remark, labeling it as a huge sweeping generalization without basis. Now, Chandrasekhar has further said that Indian EVMs are completely safe and secure. Rahul Gandhi, on the other hand, has also jumped into the debate by raking up the EVM safety and calling them a black box, which nobody is allowed to scrutinize. Meanwhile, Samajwadi Party and DMK has also joined Rahul Gandhi and demanded complete elimination of EVMs. Now, the opposition, on the other hand, has asked for return of ballot box. अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे, पहले वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। Well, Rahul Gandhi must understand what a black box is in the first place. He did crash land, but he needs to investigate the black box. The reality of the EVM is it's a standalone equipment disconnected from any connect or connectivity with any network. This has been established by none other than the former IT minister, and when they were asked, the Congress party was asked to examine the EVM, they did not turn up. Now the reality is they can invite Musk, have a look at it and realize how foolproof the EVM is. Well, the EVM controversy continues to escalate when Rahul Gandhi, while raking up the EVM debate, also referred to the brother-in-law of newly elected Mumbai Northwest Lok Sabha MP Ravindra Vaikar, who was booked for allegedly using a mobile phone at a counting centre on 4th of June. Now, when the Lok Sabha election results 2024 were actually announced. Now, Vandana Suryavanshi, the returning officer of the Mumbai Northwest Lok Sabha seat, has now reacted, saying that EVM is a stand-alone system and there is no need for an OTP to unlock it. Now, she's also assured action after the police investigation. Meanwhile, Maharashtra CM has also reacted to the EVM rows, saying that opposition is spreading a false narrative regarding the EVM. खोटं लोकांमध्ये पसरवण्याचं काम करताय। एक खोटं बोला पण रेटून बोला हे जास्त काळ चालणार नाही। रवींद्र वायकर यांना तिथल्या जनतेने निवडून दिलेला आहे आणि त्यांचा विजय जो आहे हा जनतेचा विजय आहे। किती काही आदळआपट केली तरी सुद्धा या ठिकाणी जनता शेवटी निर्णय घेते आणि आज इतकं असून देखील आज शिवसेनेचे 19.5% मतांपैकी 14.5% मतं धनुष्यबाणाला मिळालेली आहेत। हा त्यांचा मूळ शिवसैनिक जो मतदार जो आहे मुंबईतला, मुंबईत आम्हाला त्यांच्यापेक्षा 2 लाख मतं जास्ती मिळाली, राज्यामध्ये देखील 2 लाख मतं जास्ती मिळाली।
उबाटाचा 42% स्ट्राईक रेट आहे, आमचा शिवसेनेचा 48% आहे. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, म्हणून अशा प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप करतायत. अभी हाल ही में मुंबई के एक लोकसभा मतदान केंद्र में जो वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय जो एक घटना घटी थी 4 जून को, जिसके बारे में 14 जून को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कराया है. बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उपस्थित होते हैं. पहला प्रश्न कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया. इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है. कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से. मैं गुजारिश करूंगा चुनाव आयोग से कि तुरंत एक व्यापक टिप्पणी इसके बारे में प्रकाशित करें. Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.